Welcome, my dear students, in another session of allegation. Start करते हैं session को. And if you've already subscribed to the channel, then make sure to press the bell icon to get the regular updates of the videos. And if you're liking the content, I have not subscribed it, make sure to subscribe it. You can also join the Telegram channel, and you can also message me on Telegram at ADI TYAKT in case of any questions or queries. So first question लेते हैं आज के session का. In a village consisting of P persons, X% can read and write. If Y% males and Z% females can read and write respectively, then find the number of males in this village if Z is less than Y. So total number of persons village में कितना है P. And overall X% of them can read and write out of the P persons. And Y% males can read and write, and similarly Z% females can also read and write. So you have to find the number of males in the village if Z is less than Y. Okay. तो Z और Y का एक तरह से एवरेज है X%, क्योंकि ओवरऑल का है, Y% मेल्स का है, Z% फीमेल्स का है, हु कैन रीड एंड राइट. तो मेल्स आर Y%, हु कैन रीड एंड राइट, फीमेल्स Z%, हु कैन रीड एंड राइट, एंड ओवरऑल देयर आर X% पर्सन्स हु कैन रीड एंड राइट. तो वेट एवरेज ले लिया हमने, Y% Z% का एवरेज आया X%, एंड देन वी नो दैट Z इज लेस देन Y, तो Y इज ग्रेटर देन Z. If Y is greater than Z और X% हमारा एवरेज है Y और Z का, तो कैन वी कंक्लूड दैट Y शुड बी ग्रेटर देन Z ऑब्वियसली, एंड Y शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन X, और X होगा बड़ा Z से, तो ये रिलेशनशिप होगा Y X और Z में, Y विल बी ग्रेटर देन X एंड X विल बी ग्रेटर देन Z. ओके, अब डिफरेंसेस लेते हैं. तो Y इज ग्रेटर देन X, तो Y माइनस X डिफरेंस आ जाएगा Y और X का. सिमिलरली X माइनस Z डिफरेंस आ जाएगा X और Z का. And this should be the ratio X minus Z is to Y minus X. This should be the ratio of male and female. तो टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, सम ऑफ दीज टू वैल्यूज X minus Z प्लस Y minus X. तो X से X कैंसिल आउट हो जाएगा. This will become Y minus Z. So if total population is Y minus Z, the proportion of males is X minus Z in that. But total population actually हमारा है P. So number of males will be equal to P multiplied by proportion of males in the overall population, so that will be P into X minus Z upon Y minus Z. This will be the result. Clear? Okay. Similarly, females will be, number of females will be P multiplied by proportion of females in the overall population, so P multiplied by Y minus X upon Y minus Z. Question में क्योंकि number of males पूछा है, so this will be the answer. P into X minus Z upon Y minus Z. Is that clear? Okay. Next question. In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer. For every correct answer, a student gets 5 marks, and 2 marks are deducted for every wrong answer. हर एक गलत आंसर पे 2 marks deduct हो जाएंगे. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. So what is the number of incorrect responses? Number of incorrect responses क्या होगा? Okay, एक अप्रोच तो हो सकता है, एक क्वेश्चन बना के हम इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें पता है टोटल क्वेश्चन है 90. ठीक है, he has attempted all questions and still he has got 387 marks. ठीक, he or she has got 387 marks, और करेक्ट आंसर पे मिले होंगे +5, इनकरेक्ट पे मिले होंगे -2. तो अप्रोच हो सकता है, लेट अस से x है करेक्ट आंसर्स, y है इनकरेक्ट आंसर्स. तो देन वी नो दैट x प्लस y इज इक्वल टू 90, एंड 5x मिला होगा करेक्ट पे, -2 होगा निगेटिव होगा y इनकरेक्ट ऑप्शंस पे, यानी -2y हो जाएगा. 5x - 2y, दिस इज इक्वल टू 387. दिस इज इक्वल टू 387. ओके, सो 2x प्लस 2y, अगर हम डबल कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, तो दैट विल बिकम 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 180. इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो 5x प्लस 2x हो जाएगा 7x, और 2y -2y से प्लस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बिकम 7x इज इक्वल टू 567. So x will become equal to 567 divided by 7, which is equal to 81. So 81 will be correct questions, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे 9. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज वन अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक और अप्रोच क्या हो सकता है? ठीक है, अनदर अप्रोच कुड बी कि हम इस पैटर्न को समझ लें. बेसिकली जो भी क्वेश्चन वो करेक्ट कर रहा है उस पर उसको मिल रहा है +5. अब स्टूडेंट ने अगर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसका पर्पज यही था कि सारे के सारे क्वेश्चन उसके सही हो जाए.
वो तो यही सोच रहा था कि सारे 90 सही हो जाएंगे, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे 90 इंटू प्लस 5, 450 मार्क्स मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि सारे सही हुए नहीं, और जो क्वेश्चन सही नहीं हुआ अगर वो सही होता तो प्लस 5 मिलता, बट सिंस दैट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट तो -2 हो गया। तो इफेक्टिवली फर्क कितना पड़ा, सही होने पे मिलता +5 बट गलत होने पे हुआ -2, तो फर्क कितने का पड़ा, एक्चुअली -7 हो गया उसका। उसका जो टारगेट स्कोर था, उसका जो ड्रीम स्कोर था, उससे -7 हो गया एक क्वेश्चन की वजह से। तो वन क्वेश्चन अटेम्प्टेड रॉन्ग इंप्लाइज की -7 हो गया। इफेक्टिवली अगर करेक्ट होता तो +5 मिलता, इनकरेक्ट होने पे -2 हो गया, यानी कि -7 का नुकसान हुआ उसका। अगर हम सारे के सारे करेक्ट से स्टार्ट करें, यानी सारे 90 करेक्ट हैं, तो बेसिकली उसको एक क्वेश्चन जो कि इनकरेक्ट हुआ है उस पर -7 हुआ है, 7 का नुकसान हुआ, और टोटल उसके मार्क्स आए 387, विच इज 450 माइनस 63। 450 में अगर 63 मार्क्स हम कम कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 387 मार्क्स। इसका मतलब वो उसको टोटल नुकसान हुआ है 63 मार्क्स का ड्यू टू दीज इनकरेक्ट क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन पे नुकसान हुआ है 7 मार्क्स का। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आ जाएगा इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 9 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चंस विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्या ये सेकंड अप्रोच समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर बेसिकली 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए बिकॉज एक इनकरेक्ट पे उसको +5 का भी नुकसान हुआ है और फिर निगेटिव भी हुआ है -2, यानी कि 5 + 2 7 का नुकसान हुआ है, 7 का नुकसान हुआ है। क्लियर है? ओके, सो दिस सेकंड अप्रोच इज मच बेटर देन द फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच में हमें क्या करना है, एक्स और वाई मानना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। सेकंड में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना जो लिखा है तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज वी नो 90 क्वेश्चन पे 450 मार्क्स हुए टोटल, 387 एक्चुअल आया है, 450 माइनस 387 63। एक क्वेश्चन का नुकसान है, +5 -2 यानी कि 7 का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो 63 डिवाइड बाई 7, 9 क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, 9 क्वेश्चन आर इनकरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये तो दो अप्रोचेज हो गई। अब एलिगेशन वाला अप्रोच भी देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर हम एलिगेशन का अप्रोच लगाएं, कुछ क्वेश्चन हैं जहां पे उसको +5 मिला है, 5 मार्क्स मिले हैं। सम क्वेश्चंस आर देयर जो कि इनकरेक्ट हुए हैं जिन पे कि -2 मिला है, और ओवरऑल उसको ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स मिले, 387 टोटल मार्क्स हैं ऑन 90 क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे 90 उसने अटेम्प्ट किए हैं, सब पे मार्क्स मिले हैं। 387 डिवाइड बाय 90 दैट विल बी द एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में हमारा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी सिंप्लीफाई तो हो रहा है, तो 3 से काटा, नीचे बचा 30, ऊपर बचेगा 129, 129 बचा। अब 30 से उस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी वैल्यूज को, ताकि इजीली एलिगेशन ले सके। 30 × 5 विल बी +150। अच्छा, प्लस माइनस में हमेशा ध्यान रखना है, निगेटिव जब घटा रहे हो उस समय सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन में तुम गलत गलत वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 129, ये पॉजिटिव में है, बट दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। 30 × -2 दैट इज -60, -60 आ जाएगा। ठीक है, 150 - 129 विल बी 21, और 129 माइनस -60 यानी 129 + 60 हो जाएगा 189। तो रेशियो आ जाएगा 189:21। 21 से सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 9 टाइम्स, तो 9:1 का रेशियो आ जाएगा, विच इंप्लाइज की करेक्ट आंसर्स आर 9 इफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 1। ओके, यानी टोटल क्वेश्चंस अगर 10 होते तो इनकरेक्ट आंसर होता 1, हर 10 में से एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बट टोटल क्वेश्चन है कितने, 90 है। टोटल क्वेश्चन एक्चुअल में 10 नहीं है, 90 है, बिकॉज 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 क्वेश्चन, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज 1 यूनिट ही है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन विल बी इनकरेक्ट। दिस इज हाउ यू हैंडल द एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाई वेट while ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाई वेट। फ्रेश ग्रेप्स में 90% वाटर है बाई वेट, जबकि ड्राई ग्रेप्स में है 20% वाटर। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 36 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। ऑलरेडी हमने ये शायद परसेंटेज के टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। देखो, ऐसे किसी क्वेश्चन में हम किस बात पे फोकस करेंगे, उस बात पे फोकस करेंगे जो कि कांस्टेंट है, जो नहीं बदलेगा। जो बदल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, जो कांस्टेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कांस्टेंट है, जो नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्या है जो कि नहीं बदल रहा, क्योंकि इनिशियली फ्रेश ग्रेप में है 90% वाटर, ड्राई ग्रेप में क्या हुआ, जब हमने ड्राई ग्रेप हुआ यानी कि ग्रेप को सुखाया तो क्या सूख के गया, उसमें क्या इवेपोरेट हो गया, वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी कि वाटर कंटेंट इज चेंजिंग, वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है फ्रेश ग्रेप से ड्राई ग्रेप में। फ्रेश ग्रेप में 90% वाटर है, बट बचा क्या, 90% वाटर है बाई वेट, तो 10% इज पल्प। ये पल्प तो इवेपोरेट होगा नहीं, पल्प तो जितना फ्रेश ग्रेप में उतना ही ड्राई ग्रेप में रहेगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम पल्प पे ही बनाएंगे। ड्राई ग्रेप्स में हमारा क्या है, 20% वाटर है, यानी कि 80% इज पल्प, एंड इन बोथ दीज केसेस द पल्प कंटेंट विल रिमेन सेम, will remain constant.
बिकॉज ये तो चेंज नहीं हो रहा, ना तो ऐड हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो पल्प कंटेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो पल्प कंटेंट में ही इक्वेट करेंगे, फ्रेश ग्रेप में है 10%, तो 10% ऑफ फ्रेश ग्रेप्स का कंटेंट दैट इज, अगर फ्रेश ग्रेप का वेट हम W1 मान लें तो 10% W1, और ड्राई ग्रेप्स का वेट W2 मान लें तो 10% ऑफ W1 दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ W2, दैट इज पल्प इन बोथ केसेस। ओके, अब 10% सिंप्लीफाई के यहाँ पे आया 1, यहाँ बचा 8, यानी कि W1 बाई W2 दैट इज इक्वल टू 1/8। ओहो, उल्टा लिख दिया, 8/1। W1 बाई W2 इज इक्वल टू 8/1, या फिर स्ट्रेट अवे निकाल सकते थे कि W2 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई 8, और W1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 36 किलोग्राम्स, so दैट इज वाई W2 या फिर वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स विल बी इक्वल टू 36/8 which is 4.5 kilograms. So our answer will be 4.5 kilograms will be the weight of dry grapes obtained from 36 kg of fresh grapes. क्या ये अप्रोच समझ में आता है? ठीक है, और बेसिकली हमें स्ट्रेट अवे ये लाइन लिखना था और इसके बाद सॉल्व हो जाता है। 10% ऑफ फ्रेश ग्रेप्स का वेट दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई ग्रेप्स का वेट। ओके, आंसर आ गया 4.5 kg। ये तो हो गया अप्रोच हमारा, जैसे कि हम सिंपली इस क्वेश्चन को करेंगे। एलिगेशन अगर हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो एलिगेशन कब अप्लाई करते हैं? व्हेन वी आर मिक्सिंग बेसिकली टू ग्रुप्स, दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हैं और उससे एक थर्ड क्वांटिटी बना रहे हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हैं Q1 और Q2 को, और उससे हम एक थर्ड क्वांटिटी बना रहे हैं। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है? फ्रेश ग्रेप्स है, फ्रेश ग्रेप्स में वाटर भी है और वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है, उसके बाद में बचता है हमारा क्या? ड्राई ग्रेप्स बचता है। ठीक, फ्रेश ग्रेप्स है, माइनस सम वाटर, पूरा वाटर तो नहीं जाता बट सम वाटर इज रिमूव्ड, एंड देन हमारा बचता क्या है? ड्राई ग्रेप्स बचता है। तो अगर हम इससे रिवर्स देखें कि ड्राई ग्रेप्स में हमने कुछ वाटर ऐड किया और फ्रेश वाटर आ गया, फ्रेश ग्रेप्स आ गए। ठीक है, अगर हम इससे रिवर्स चेकआउट करें, एक्चुअल में हो वैसा नहीं रहा है बट एलिगेशन लगाने के लिए हमको इसको रिवर्स में देखना पड़ेगा कि अगर ड्राई ग्रेप्स में इस वाटर को हम ऐड कर देते तो हमारे फ्रेश ग्रेप्स मिल जाते हैं हमको। बेसिकली Q1 हमारा ड्राई ग्रेप्स है, Q2 is some water that is evaporating, that has evaporated। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा दिस इज फ्रेश ग्रेप्स। क्या बात समझ पा रहे हो कि हम एलिगेशन कब लगा पाएंगे? जबकि हमारा फ्रेश ग्रेप्स इज कंबाइंड एवरेज ड्राई ग्रेप्स और इवेपोरेटेड वाटर का कंबाइंड एवरेज इज फ्रेश ग्रेप्स। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब ड्राई ग्रेप्स में हमारा वाटर कितना है, चाहे वाटर पे एलिगेशन लगा लो या फिर पल्प पे लगा लो। ओके, ठीक है। तो ड्राई ग्रेप्स में हमारा वाटर कितना है? वाटर इज 20%। 20%, तो अगर वाटर पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो ड्राई ग्रेप्स में वाटर है 20%, और जो इवेपोरेटेड वाटर है वो तो वाटर ही वाटर है, 100% वाटर है, और दोनों से बना हमारा फ्रेश ग्रेप्स जिसमें कि 90% वाटर है। तो कंबाइंड एवरेज इज 90%। नाउ 90% माइनस 20% इज 70%, और 100% माइनस 90% इज 10%। 10:70 यानी 1:7 का रेशियो आ गया। दिस रेशियो इज फॉर ड्राई ग्रेप्स एंड वाटर। तो 1 यूनिट हमारा ड्राई ग्रेप्स का वेट है, 7 यूनिट्स वाटर है, टोटल मिला के आ गया 8 यूनिट्स, एंड दिस टोटल कंबाइंड इज फ्रेश ग्रेप्स का वेट विच इज इक्वल टू 36 kg। तो इफ 8 यूनिट्स इक्वल टू 36 kg, ड्राई ग्रेप्स का वेट है 1 यूनिट, तो दैट विल बी 36/8 एंड हैज इक्वल टू 4.5 kg। ठीक है, और यहाँ से हमें वाटर इवेपोरेटर का वैल्यू मिल जा रहा है, अगर वो हमें निकालना हो किसी क्वेश्चन में कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, तो दैट विल बी 7 यूनिट्स इन 36 × 7/8। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सेम एलिगेशन हम चाहते हैं वाटर के बजाय पल्प पे भी लगा सकते थे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी शुगर कंटेन्स 32% impurities while processed sugar has 18% impurities। ऑर्डिनरी शुगर में 32% है impurities while processed sugar has 18% impurities। How many kg of ordinary sugar must be processed to yield 102 kg of processed sugar? 102 kg of processed sugar। Okay, so if ordinary sugar has 32% impurities, processed sugar में है 18%, तो impurities क्या है? रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है प्रोसेस शुगर में, बट जो शुगर कंटेंट है, जो एक्चुअल प्योर शुगर कंटेंट है वो तो सेम रहेगा।
वो तो सेम रहेगा। तो ऑर्डिनरी शुगर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कितना परसेंट है, 68%। इफ 32% इज इम्प्योरिटी, 68% इज शुगर। तो 68% ऑफ ऑर्डिनरी शुगर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 18% है इम्प्योरिटीज, यानी कि 82% रिमेनिंग इज प्योर शुगर। तो 82% ऑफ प्रोसेस शुगर वेट। ठीक है, तो इफ ऑर्डिनरी शुगर का वेट है W1, 68% ऑफ W1 इज इक्वल टू 82% ऑफ W2। इस केस में हमें क्या गिवन है, हमें ऑर्डिनरी शुगर का वेट आइडेंटिफाई करना है, जबकि प्रोसेस शुगर का वेट हमको गिवन है, यानी कि W2 की वैल्यू हमें गिवन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई W1 की वैल्यू क्या होगी। तो W1 विल बी इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 68 इंटू W2। 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 41, नीचे बचेगा 34। तो W1 इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 34 इंटू W2। अब W2 की जगह पे पुट कर दोगे 102 kg, तो हमें आंसर मिल जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई 102, 34 से 3 टाइम्स जाएगा, तो 41 इंटू 3, 123 kilograms शुड बी द ऑर्डिनरी शुगर इन केस वी नीड टू ऑब्टेन, वी नीड 102 kg ऑफ प्रोसेस शुगर। तो 123 किलोग्राम हमको 123 kg ऑर्डिनरी शुगर लेना पड़ेगा टू गेट 102 kg ऑफ प्रोसेस शुगर। दिस इज वन वे टू गेट इट। एलिगेशन से इसी सेम चीज को करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या है, एलिगेशन में हमारा ओवरऑल एवरेज किस पे आएगा, ऑर्डिनरी शुगर पे आएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी शुगर पे आएगा, जबकि एक साइड में होगा प्रोसेस शुगर और एक साइड में होगा प्योर इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज तो रिमूव हो रही है, तो प्रोसेस शुगर को इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करके हमने बनाई ऑर्डिनरी शुगर। ठीक है, तो प्रोसेस शुगर में है 18% इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज में है 100% इंप्योरिटीज, और ओवरऑल है 32% इंप्योरिटीज। तो 32 माइनस 18 इज 14, और 100 माइनस 32 68। तो रेशियो आ गया 34:7 का रेशियो आ गया। तो टोटल ऑर्डिनरी शुगर हमारा कितना हो जाएगा, 34 + 7 यानी 41 यूनिट्स हो जाएगा। और 34 यूनिट्स क्या है, प्रोसेस शुगर। प्रोसेस शुगर का हमें वेट गिवन है 102 kg, 34 यूनिट्स इज 102 kilograms, hence 1 unit will be equal to 3 kilograms. So 41 units will be 41 into 3, which is equal to 123 kilograms of ordinary sugar. Okay, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two types of rice are mixed together and the mixture is priced at rupees 46 per kilograms. If price of type 1 rice is 20% less than the type 2 rice and the rice are mixed in the ratio 2:3, then what is the price of type 2 rice? Price of type 1 rice is 20% less than type 2 rice. 20% means 1/5। तो 1/5 कम है प्राइस, यानी कि 5 में 1 का डिक्रीज हुआ है, 5 में 1 का डिक्रीज हुआ है। तो अगर टाइप 2 राइस का प्राइस 5 यूनिट्स ले लें या 5x ले लें, 5x ले लें, तो टाइप 1 राइस का प्राइस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1x कम, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। तो टाइप 2 का प्राइस इज 5x, टाइप 1 का प्राइस इज 4x, और ओवरऑल एवरेज हमारा आ रहा है 46 रुपीज पर केजी। एंड देन वी नो कि दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 का रेशियो है मिक्स करते समय। नाउ 2 + 3 टोटल इज 5 यूनिट्स, और ये 5 यूनिट्स बराबर होगा हमारा जो डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 के प्राइस का डिफरेंस है या कॉस्ट का डिफरेंस है। 5x और 4x का डिफरेंस कितना है, x यूनिट्स का डिफरेंस है। तो दिस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू x, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। अब या तो हम 4x में 3 यूनिट्स ऐड कर दें, बिकॉज 4x इज लेस देन 5x, तो हमारा 46 जो वैल्यू है ये 4x से ज्यादा होगा। या तो 4x में हम 3 यूनिट्स ऐड कर दें, या फिर हम 5x में 2 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी भी तरह से समझ लो। तो दिस 46 विल बी इक्वल टू 4x प्लस 1 यूनिट इज x/5, 3 यूनिट्स विल बी 3x/5। तो 4x प्लस 3x/5, so this will be 4x into 5, 20x plus 3x, 23x/5, and that is equal to 46। 23 से जाएगा 2 टाइम्स, so x will be equal to 10। x equal to 10 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस टाइप 2 राइस। टाइप 2 राइस यानी कि 5x की वैल्यू पूछा है, तो 5 into 10, आंसर विल बी 50 रुपीज पर केजी। टाइप 2 राइस का प्राइस आ जाएगा 50 रुपीज पर केजी, और टाइप 1 राइस का प्राइस आ जाएगा 40 रुपीज पर केजी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Several students have taken an exam
there was an error in the answer key which affected the marks of 48 students and their average marks reduced from 78 to 66. 78 उनके मार्क्स आ रहे थे इनिशियली, बट बाद में मार्क्स कितने हो गए? 66. रिडक्शन हो गया 12 मार्क्स का, और रिडक्शन इसलिए हुआ बिकॉज देयर वाज एन एरर इन द आंसर की. द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 3.5 मार्क्स. तो इनके तो मार्क हुए रिड्यूस, बाकी स्टूडेंट्स जो बच गए उनके मार्क्स इंक्रीज हुए 3.5 से. बट एज अ रिजल्ट दिस रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बाय 4.5 मार्क्स. तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्जाम क्या होगा? ओके, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्जाम क्या होगा? अगर हम इनिशियल एवरेज वैल्यूज की बात करें, लेट अस से ये जो 48 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज आ रहा था A1, ठीक है, सब कुछ होने से पहले, और बचे हुए स्टूडेंट्स को n मान लेते हैं तो उनका एवरेज था A2. तो वेट एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल वेट एवरेज क्या हो जाएगा? A विल बी इक्वल टू 48 इंटू N1, ये सम आ जाएगा इन स्टूडेंट्स का 48 स्टूडेंट्स का प्लस n इंटू A2, ये सम आ गया बचे हुए n स्टूडेंट्स का डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 48 प्लस n. तो डेफिनेटली जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें बेस वैल्यू का रेशियो मिलेगा, यानी कि 48 और n का रेशियो मिलने वाला है. क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, बट फर्क क्या पड़ा है? इनिशियली एवरेज था A1 इन 48 स्टूडेंट्स का, बट अब एवरेज हो गया है A1 78 से हो गया 66. 78 को छोड़ो, A1 ही समझो, ठीक है. तो A1 एवरेज था 66 हो गया, यानी कि 12 का रिडक्शन आया है, A1 माइनस 12 हो गया है. और जो बचे हुए n स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज पहले रहा होगा A2, बट अब 3.5 से इंक्रीज करा, यानी A2 प्लस 3.5 हो गया है. और नेट में क्या चेंज आया है? अगर एवरेज पहले ओवरऑल A था तो अब एवरेज हो गया है, रिडक्शन आया है 4.5 का, यानी कि A माइनस 4.5 हो गया. और इस पर हमको एलिगेशन लगाना है. क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बट ये तो हमें पहले भी पता है कि A1 और A2 का वेट एवरेज A आ रहा होगा पहले, और रेशियो क्या होगा? 48:1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. इज दैट इट सो? ये तो पहले ही था. तो A1 और A2 और A पे एलिगेशन लगाने की कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है. हम सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है, जो चेंज है, बस उस पर एलिगेशन लगा देते हैं डेल्टा A वैल्यूज पे, यानी कि डेल्टा A1 और डेल्टा A2 की वजह से जो ओवरऑल पे एवरेज पे फर्क आया डेल्टा A, दैट इज अवर कंसर्न. क्या ये बात समझ पा रहे हो? वो हमारा कंसर्न है. ठीक है, तो हम A1 A2 और A को इग्नोर करते हैं, पूरी तरह से रिमूव मार देते हैं यहाँ से. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा कर पाए? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो चेंज आया है एवरेज में, तो ओवरऑल जो चेंज आया है एवरेज में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन एवरेजेस ऑफ 48 स्टूडेंट्स एंड n स्टूडेंट्स. तो उनका ही हम कंबाइंड हम चेंज ले रहे हैं. तो हमारे लिए जो ओरिजिनल एवरेज वैल्यूज है, इनिशियल एवरेज वैल्यूज है, उनका कोई रेलेवेंस नहीं है. वो कुछ भी रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा जो चेंज है उस पर और जो फाइनल रेशियो है उस पर इसका कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है. तो हमने इनको रिमूव कर दिया. ओके, नाउ -12, ठीक है, -12 को सब्ट्रैक्ट करना है -4.5 से, क्योंकि -4.5 से छोटी वैल्यूज है, छोटी वैल्यू है. तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा -4.5 माइनस -12. जब भी निगेटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो हमेशा एक कॉशियस रहो कि माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बिकम +12. -4.5 + 12 आ जाएगा 12 - 4.5, यानी कि 7.5 वैल्यू आएगा. दिस विल बी इक्वल टू 7.5. और सिमिलरली यहाँ पे तुम करोगे 3.5 माइनस -4.5, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 + 4 7 + 1 8, 8 आ जाएगा. तो रेशियो आ गया हमारा 8:7.5 का, यानी कि 16:15 का रेशियो आ गया हमारा. 16:15 का रेशियो आ गया, यानी 16 अगर हमारे स्टूडेंट्स होते पहले वाले ग्रुप में तो 15 स्टूडेंट्स होंगे दूसरे वाले ग्रुप में. बट पहले वाले ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 नहीं है, 48 है. 48 है, यानी कि 3 टाइम्स है. दूसरे वाले ग्रुप में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 नहीं होंगे, 3 टाइम्स होंगे. 15 × 3 यानी कि 45 होंगे. 48 होंगे पहले वाले ग्रुप में, 45 होंगे दूसरे वाले ग्रुप में. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाएगा 48 + 45, दैट इज इक्वल टू 93. तो आवर आंसर विल बी 93 इन दिस केस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है. बट एलिगेशन इज नॉट द ओनली मेथड जिससे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर अदर मेथड्स एज वेल. तो उन बाकी मेथड्स को भी देख लेते हैं. ठीक है, एलिगेशन तो एक तरीका है, बट सिर्फ इस तरह से ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है. जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस, जब हमने एवरेज में क्वेश्चंस डिस्कस करे तो वहां पे भी किया है कि अल्टीमेटली क्या है, -12 हमारा है, डिफरेंस आ रहा है एवरेज में डेल्टा A1, और +3.5 आ रहा है डेल्टा A2, और ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है हमारा -4.5 का, है कि नहीं? ठीक है, तो हम इस तरह से एवरेज लेके भी, एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? फर्स्ट ग्रुप में चेंज आ रहा है हमारा -12 का, सेकंड में आ रहा है +3.5 का, और ओवरऑल चेंज आ रहा है हमारा -4.5 का. ठीक है, तो पहले ग्रुप में जो चेंज -12 का आ रहा है, इसकी वजह से सम में चेंज कितना आएगा? अल्टीमेटली हम देख रहे हैं डेल्टा S1. सम में कितना चेंज आ रहा है पहले ग्रुप की वजह से? डेल्टा S2.
सम में कितना चेंज आ रहा है दूसरे ग्रुप की वजह से, और ओवरऑल डेल्टा एस जो कि डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 होगा, यानी कि ओवरऑल एवरेज में ओवरऑल सम में कितना चेंज आएगा हमारा। ठीक है, डेल्टा S1 क्या होगा, -12 का चेंज आ रहा है पर स्टूडेंट, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 48, दिस विल बी -12 इंटू 48। बेसिकली हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ए यानी एवरेज में चेंज मल्टीप्लाइड बाई एन, तो दिस इज चेंज इन सम। ठीक है, सो डेल्टा ए इंटू डेल्टा एन यानी कि -12 इंटू 48, सिमिलरली प्लस 3.5 इंटू, अगर एन स्टूडेंट्स माने हमने तो प्लस 3.5 इंटू एन आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -4.5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 48 प्लस एन। और जैसा हमने पीछे भी देखा है, ऐसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, अब इसको दो पार्ट में राइट हैंड साइड को ब्रेक कर दोगे, राइट हैंड साइड को दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे, दिस विल बिकम -4.5 इंटू 48 और -4.5 इंटू एन। ओके, अब -4.5 इंटू एन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे और इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओगे, तो दिस विल बिकम 4.5 इंटू एन प्लस 3.5 इंटू एन, यानी कि 4.5 प्लस 3.5 इंटू एन, दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा +12 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो 12 माइनस 4.5 इंटू 48, तो दिस इज 8n इज इक्वल टू 7.5 इंटू 48, 8 6 आर 48, तो 8 से 6 टाइम्स जाएगा, तो n हमारा आ जाएगा इक्वल टू 7.5 इंटू 6, दैट इज 45, n इज इक्वल टू 45 आ गया, बट क्वेश्चन हमसे n की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अदरवाइज अगर ऑप्शन में 45 आ जाएगा तो मार्क कर दोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा n प्लस 48, and hence that will be 45 plus 48, that is 93। क्लियर? ठीक है, हाँ, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि तुम एज्यूम कर लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हारे n है, ऐसा भी कर सकते हो, टोटल n मान लो और n में से 48 के लिए -12 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और बचे कितने n माइनस 48, इनके लिए रिडक्शन, इनके लिए हुआ इंक्रीज प्लस 3.5 का। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद में अल्टीमेटली जो हमें आंसर मिलेगा वो n ही मिल जाएगा, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके अपने एंड पे देख लेना, n की वैल्यू आ जाएगी 93। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो इससे भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीकों में कोई गलती नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ शुगर सिरप in percentage is equal to amount of sugar in grams per 100 cc of water, 1 cc यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सिरप इन परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ शुगर इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ वाटर। टू बॉटल्स हैं, दो बॉटल्स हैं हमारे पास 500 ml की, और जिनमें की शुगर सिरप ऑफ स्ट्रेंथ, शुगर सिरप ऑफ स्ट्रेंथ 44% एंड 29% रिस्पेक्टिवली फिल्ड है। ओके, तो पहली बॉटल में है 44% शुगर और दूसरी बॉटल में है 29% शुगर। अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज ड्रेन्ड, पहले दोनों बॉटल्स पूरी की पूरी फुल भरी हुई हैं, बट बाद में हमने क्या किया, पहली बॉटल में से एक पार्ट को ड्रेन कर दिया, ठीक है, एक पार्ट को रिमूव कर दिया और रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बॉटल। तो जितना पार्ट हमने रिमूव किया है उतना पार्ट हमने दूसरी बॉटल से पहली बॉटल में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो उतना हमारा सेकंड बॉटल एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द शुगर सिरप इन द फर्स्ट बॉटल इज नाउ 35%, तो देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल क्या होगा। और दिस इज अ कैट रेप्लिका क्वेश्चन, कैट 2021 का एक क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन ये कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द शुगर सिरप इन द फर्स्ट बॉटल नाउ, अब कितना बचा है 35% बचा है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल ये हमको बताना है। पॉज करो वीडियो को, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, एलिगेशन लगा के इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली पहली बॉटल में हमारा क्या सिनारियो बन रहा है कि ये तो है जो कि रिमेनिंग है, रिमेनिंग सॉल्यूशन है फर्स्ट बॉटल का, और फिर ये जो ऊपर जो सॉल्यूशन आने वाला है ये हमने सेकंड वाली बॉटल से ये रिप्लेस किया है, दिस इज रिप्लेसमेंट, ड्रेन करने के बाद में रिप्लेसमेंट किया है। ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके हमारा क्या सॉल्यूशन बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है 35% का। तो एक पार्ट है हमारा जो कि 44% सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा पार्ट है हमारा जो कि है 29% सॉल्यूशन, जो कि सेकंड बॉटल से लिया है। ठीक है, ये तो रिमेनिंग पार्ट है पहली बॉटल में, और ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है जो कि सेकंड बॉटल से लिया हमने, और दोनों को मिलाने के बाद में हमारा सॉल्यूशन बन रहा है 35%। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हमने दूसरी बॉटल से लिया है तो पूरा का पूरा ले लिया है, जितना हमने रिमूव किया था, जितना हमने ड्रेन किया था उतना पूरा रिप्लेस किया है, यानी ऐसा नहीं हुआ है कि कम रिप्लेस किया हो, ज्यादा रिप्लेस किया हो, यानी कि बॉटल अभी भी पहली वाली पूरी फुल है, पूरी 500 ml है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, और तभी हम ये एलिगेशन लगा पा रहे हैं तरह से, क्लियर है? ओके, ठीक है, अगर कम भी होता तो भी चल जाता, बट कम होने के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते।
हमें ये तो मिल जाता है रेशियो क्या आएगा रिमेनिंग और रिप्लेसमेंट वाले का, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से हमें क्या रेशियो मिलने वाला है, हमें वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ दिस 44% सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम होगा रेशियो में, और इस रिप्लेसमेंट वाले सॉल्यूशन का, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये हमें अल्टीमेटली रेशियो में मिल जाएगा फाइनली एलिगेशन लगाने के बाद में। क्लियर है? ठीक है, और हमें टोटल वॉल्यूम पता है 500 ml है, बिकॉज अल्टीमेटली ये रिप्लेस करने के बाद में ही बॉटल हमारी कंप्लीटली फुल है। अगर बॉटल कंप्लीटली फुल नहीं होती तो हमें टोटल वॉल्यूम नहीं पता होता, रेशियो तो मिल जाता बट टोटल वॉल्यूम पता नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे हम पॉसिबिलिटीज बना सकते थे बट एक्चुअल आंसर हम नहीं निकाल पाते। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? रेशियो तो पता चल जाता है कि रिमेनिंग कितना था, यानी कितना कंटेंट हमारा बॉटल 1 का था और कितना कंटेंट बॉटल 2 का था, जो कि हमने बॉटल 1 में रिप्लेस किया है। रेशियो मिल जाता, बट अगर फुल नहीं होता तो एक्चुअल वॉल्यूम हम नहीं पता कर पाते। बट यहाँ पे क्योंकि फुल हो रहा है तो एक्चुअल वॉल्यूम कैन बी डेफिनेटली डिटरमाइंड वेरी इजीली। 44 में से सब्ट्रैक्ट करो 35, रिजल्ट आ रहा है 9, और 35 में सब्ट्रैक्ट किया तुमने 29, आ गया 6, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम में 6:9, जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा 2:3, और 2 + 3 आ रहा है टोटल 5 यूनिट्स, और ये टोटल कितने के बराबर है, कंप्लीट जो वॉल्यूम था बॉटल 1 का 500 ml के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल 100 ml, यानी कि 200 ml हमारा होगा बॉटल 1 वाला सॉल्यूशन जो बचा होगा, और 300 ml होगा बॉटल 2 वाला सॉल्यूशन। 200 ml बॉटल 1 वाला सॉल्यूशन है और 300 ml बॉटल 2 वाला सॉल्यूशन है जो हमने रिप्लेस किया है। अब अगर बॉटल 2 में टोटल 500 ml था बट उसमें से 300 ml तुमने डाल दिया है बॉटल 1 में, बचने वाला कितना है, 200 ml बचेगा, तो रिमेनिंग विल बी 200 ml। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बॉटल, रिमेनिंग वाला ही पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 200 ml। ये ध्यान देना है, 300 ml मार्क कर दिया अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल था इस क्वेश्चन का, समझना था, समझ के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, तो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, और अगर ध्यान से बातों को समझे होगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझे होगे, तो आई गेस सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्सएवर, कितना ही बेसिक डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट अबाउट दैट एज वेल। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। This is all in this session. Bye. Take care.